Assalamu alaikum, Sara. A very warm welcome to my show and a happy Women's Day to you. Walaikum Assalam. Thank you so much for having me, first of all, and a very happy Women's Day to you as well and to all the women watching. थैंक यू सो मच। अच्छा सारा, मुझे बताएं अपने जर्नी के हवाले से कि कैसे सारा ने ये ख्वाब देखा कि मैंने एक टेनिस प्लेयर बनना है और टेनिस प्लेयर के बाद अब एक टेनिस स्टार भी बन गई। सो ये जर्नी कितना आसान था, कितना मुश्किल था, मेरे नाज़रीन को बताइएगा। ख्वाब तो मेरे फादर ने देखा था एंड यू नो व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं बड़े होकर टेनिस खेलूं और उसमें अच्छा खेलूं, अच्छा परफॉर्म करूं। एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग। हम असल में कुवैत में रहते थे एंड वहाँ पे बहुत गर्मी होती थी ऑब्वियसली, सो माय फादर स्टार्टेड टीचिंग मी इनसाइड आवर अपार्टमेंट व्हेन आई वाज 8 years old। फिर उसके बाद करते करते व्हेन आई वाज 12 तो हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए। वहाँ पे मैंने जूनियर टूर्नामेंट्स जीतने शुरू किए और उसके बाद मेरा भी शौक और ज़्यादा डेवलप हो गया और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन लेडीज़ इवेंट्स एंड at the age of 14 I won my first national title and then you know I just kept going from there। अच्छा सारा, बच्चे का ना कोई आइडियल ज़रूर होता है जब वो बड़ा हो रहा होता है। स्पेसिफिकली अगर आप टेनिस खेलना शुरू किए तो ऑफ कोर्स फिर आप दूसरों की जो आलमी सतह पर जो टेनिस की गेम्स होती है तब उसको भी देखते हैं। हु वाज योर आइडियल जिसको आप देख के करती थी कि हाँ मुझे ऐसा बनना है? That's a very good question. I've had lots of idols growing up. When I was very young, obviously, सबसे पहले your first idols are your parents. In my case, it was obviously my dad, क्योंकि he was my coach, but my mom as well. She was in obviously everyone thinks their mother is the best person in the world, but for me, I mean, you know, she was the kind of person that I aspired to be. And then when I got older and I started watching tennis, तो मुझे Federer बहुत पसंद था। I really admired his game and his larger than tennis attitude, you know, all around such an amazing human। And then फिर शरापोवा को भी मैं बहुत ज़्यादा idolize करती थी। I really loved her game style। So yeah, those are a few of my idols। सही। मुझे बताएं, आपका इसके अलावा, ठीक है आपके फादर चाहते थे कि वो आप टेनिस स्टार बने, टेनिस प्लेयर बने, बट आप खुद वैसे क्या चाहती थी कि आप क्या बनना चाहती थी? You know, honestly, I don't remember because I was so young जब मैंने टेनिस खेलना शुरू किया। मुझे याद भी नहीं है when I picked up my tennis racket for the first time। but जाहिर है मुझे अच्छी लगी होगी तो तभी मैंने continue की। but I do remember when I was very young, I wanted to be a pilot। this is when I was like 5 or 6 years old। but I was told that girls can't be pilots, so I had to give up that dream। सही। मैं आपसे जानना चाह रही कि जो आपकी पहली जीत है वो आपको याद है जब आप पहली बार जीती थी किसी बड़े मुकाबले में, और जब हारी थी तो उस हार से आपने क्या सीखा था? सबसे पहले जब मैं जीती थी that was when I was 14 years old and this was a tournament that was happening at Islamabad club। I was playing against a good friend और ये मेरा पहला women's का final था, so I remember being really nervous but I won that match in straight sets and वो मैच मेरे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था because उसके बाद जो मुझे confidence मिला उसके that helped me win so many other tournaments after that। and then the next year I actually ended up becoming Pakistan #1 at the age of 15। so that match was very memorable for me। सारा, इस साल कौन-कौन से इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाली हैं? I'm actually in Lahore right now playing the Hassan Tariq Rahim National Ranking Tournament and ये साल का सबसे बड़ा tournament होता है पाकिस्तान का and it happens in Lahore Gymkhana and it's an amazing tournament, amazing facilities। they treat the players so well और सबसे ज़्यादा prize money भी इसी tournament की होती है। so I'm actually really excited। I won my semi-final yesterday and inshallah I'll be playing my final on Sunday। so yeah, right now I'm you will win your final as well। इंशाल्लाह। Thank you। अच्छा सारा, इंटरनेशनल लेवल पर वो कौन सी कामयाबी है जिस पर आपको और आपकी फैमिली को सबसे ज्यादा फख्र है?
There's quite a few tournaments. So over the course of my career, juniors में भी मेरी बहुत अच्छी performances रही थी. I reached some finals in Jordan and Syria in 2008 and 9, which were really special to me. Doubles के finals खेले और उसके अलावा नेपाल में 2019 में हमारी टीम ने bronze medal लिया SAF Games में, which was also something very special for us as a team. So yeah, we were represented many times and there are some really fond memories attached to it. सही, बहुत शुक्रिया जी सारा महबूब हमारे साथ मौजूद थी. एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक. ख़वातीन को नर्म और नाजुक समझने वाले किसी गलतफहमी में ना रहें. सिर्फ नाजुक अब सिर्फ दीवारी तक महदूद ही नहीं है, बल्कि आज की औरत बुलंद तरीन पहाड़ों की चोटी पर चढ़ने का चैलेंज भी कबूल कर रही है. पहाड़ों को सर करने की बात करें तो जहन में समीना बेग और नाला कियानी के नाम आते हैं. ये वो दो पाकिस्तानी कोपहमा ख़वातीन हैं जो 2 साल पहले दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर कर चुकी हैं. आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमने ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून को दावत दी है, सादिया मकबूल, जो कि एक प्रोफेशनल कोपहमा है और अपनी बहन के साथ मिलकर सयाहों को ये पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में सैर करवाती हैं. हमारे साथ सादिया मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सादिया एंड वेलकम टू सुबह का समा. वालेकुम सलाम. अच्छा सादिया, मुझे ये बताइए, ये कोपहमाई का शौक अब आपके अंदर पैदा कब से हुआ? सो बेसिकली हम लोगों ने 2019 में स्टार्ट की थी अपनी कंपनी में और मेरी बहन ने, ट्रैवल गर्ल्स के नाम से. तो शुरू में तो हम बिल्कुल छोटे छोटे ट्रैक्स करते थे और उसके मतलब ग्रुप्स लेके जाते थे, स्पेशली ख़वातीन के, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरे वालिद साहब और मेरे भाई जाते होते थे नॉर्दर्न एरियाज में, तो उस टाइम हमें इतनी परमिशन नहीं थी जाने की साथ में ना, तो शायद वो तब से था थोड़ा थोड़ा ना. तो उसके बाद जब हम लोगों ने खुद जाना स्टार्ट किया पहाड़ों पे, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्स करना शुरू किए. तो उसके बाद फिर मतलब पहाड़ों को देख के उनकी समिट्स पे भी हम लोगों ने 1-2 स्टार्ट की, तो वहां से ये शौक पैदा हुआ. साथ ही मुझे बताएं, उमूमी तौर पे ना वैसे जब हम शिमाली इलाका जात के वाले से बात करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ के वाले से बात करते हैं, तो लड़के जो हैं वो अपना अकेले ट्रिप तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन जो है ना वो बड़ा घबरा, और क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ऐसी है कि लड़कियां थोड़ा सा पीछे रह जाती है कि नहीं भी हम वैसे तो पूरी दुनिया में अकेले घूम लेंगी, लेकिन पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में लड़कियाँ अकेले ट्रैवल नहीं कर पाती. ऐसे हालात में आपने ना सिर्फ अकेले ट्रैवल किया, बल्कि आपने अपनी बहन के साथ मिलकर ऐसी ट्रैवल कंपनी जो है वो खोली जिसमें आप बाकी ख़वातीन को सैर करा रही हैं. तो ये आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था वैसे? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें हम लोग जब से करें, हम लोग जब भी कोई हमारा बेसिकली होता भी ट्रैकिंग ही है. हम हाइकिंग पे लेके जाते हैं ख़वातीन को भी और उसमें बॉयज भी होते हैं, लेकिन हम अपना सारा प्लान आउट पहले रिसर्च एंड एवरीथिंग कंप्लीट करके उसके बाद फिर वहाँ के लोग की टीम होती है हमारे साथ, पोर्टर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं जो लोकल होते हैं सब वहाँ के. तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए हैं हम लोग जितने भी ट्रिप्स पे गए हैं, कभी भी कोई ऐसा इस तरह का, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ने लड़की नहीं देखनी है, लड़का नहीं. कैसे तो कितने ट्रिप्स कर चुकी हैं?